students. So as you know that we have started the trigonometric topic and we have completed 2 lectures from the trigonometry. Okay, so this is the new example and another example from the same practice set, that is practice set 7.1. Okay, so before starting the trigonometry I have shared you the formulas. I have shown you how to write the formulas, what are the identities, what are the trigonometric ratios. Using that formulas only we have to solve this example. So here the question is given that prove that, and 3 questions are given. First is given, that is sin square theta upon cos theta plus cos theta equal to sec theta, means sin square upon cos plus cos equal to sec. ये LHS का टर्म जो दिख रहा है हमें, ठीक है, sin square upon cos plus cos, इसको सिंप्लीफाई करके sec के इक्वल प्रूफ करना है, sec थीटा ये फंक्शन है. These are the trigonometric functions. Second, cos square theta into bracket 1 plus tan square theta equal to 1. We have to solve this statement LHS and we have to make it equal to 1. And the third one is, that is root 1 minus sin theta plus upon 1 plus sin theta equal to sec theta minus tan theta. So these are the questions and these questions are very important. Okay, for solving this question you have to be remember the identities. Okay, तो मैंने तुमको आइडेंटिटीज़ के 3 आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले लिखाया था. इफ़ आई होप यू रिमेंबर दैट इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव शेयर्ड यू द फॉर्मूलेज. आई हैव एक्सप्लेन ऑल द फॉर्मूलेज, हाउ टू लर्न द फॉर्मूलेज, हाउ टू राइट द फॉर्मूलेज. सो अगेन आई एम शेयरिंग यू द फॉर्मूलेज. ओके, फर्स्ट आइडेंटिटीज़ मैंने बताया था आपको. जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो दैट यू नो ऑलरेडी नो, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, second identity we have seen, that is sec square theta minus tan square theta equal to 1, and third identity we have seen, that is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. ये 3 identities are very important for the solving of this type of examples. Okay, ये 3 identity के बाद आता है ratios जो मैं तुमको लिखाया था, that is tan theta is equal to sin theta upon cos theta, that is the first ratio trigonometry. Then similarly cot theta अगर होगा तो फॉर्मूला होता है cos theta upon sin theta, एंड इसके बाद मैंने आपको दिखाया था cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sin का रेसिप्रोकल. देन sec theta is equal to 1 upon cos theta, cos का रेसिप्रोकल, एंड cot theta is equal to 1 upon tan theta. These are the trigonometric रेशोज़. तो ये तुमको आइडेंटिटीज़ और ये रेशोज़ अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख सकते तुम, ठीक है. तो ये दोनों लर्न चाहिए तुमको. यूजिंग दिस ओनली, इतने ही फॉर्मूलेज है बस, 3 आइडेंटिटीज़ एंड दीज आर द रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़. इफ़ यू नो दिस फॉर्मूलेज वेरी वेल एंड इफ़ यू हैव लर्न दिस फॉर्मूले देन यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल. और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू डोंट नो दिस फॉर्मूलेज यू can't simplify the example, you can never understand this example. So very much important, this formula you have to be learned. Okay, this identities and this trigonometric ratios. Now we'll start with the examples. Okay, so first question you can see here, that is given. Okay, if you know, that is the first question is given that sin square theta, and I am writing here sin square theta upon cos theta प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा. अभी हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब सॉल्व कैसा करना है इसको. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. सो विल राइट हियर LHS, लेफ्ट हैंड साइड. विल राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. पहले हमने लिखे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा. Then we have to take cross multiplication here. Okay, because this is the part in the division, this is not in division part, so we have to take cross multiplication जैसा हम simple maths में करते. So this will multiply here, what you will get, sin square theta plus cos into cos you will get cos square theta upon cos will be same, जिसको हम लोग बोलते हैं LCM, least count multiple. Okay, या तो फिर हम बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. साइन स्क्वायर थीटा सेम, cos into cos is cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी याद देखेंगे तो
दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने देखे आइडेंटिटी है, दैट इज मैं साइड में लिखा के दे रहा हूँ तुमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, जो हमने अभी देखा, जो मैंने तुमको अभी लिखाया कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो ये भी पार्ट आइडेंटिटी बन रहा है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 1, और अपॉन कॉस थीटा इज सेम, ओके, बट 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, वो भी रेशियो देखे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले हमने आइडेंटिटी यूज़ करे, ओके, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, देन वी हैव गॉट 1 अपॉन कॉस थीटा, आफ्टर दैट 1 अपॉन कॉस थीटा बन गया सेक थीटा, तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। अभी आज चेक करो RHS में सेक थीटा आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, फिनिश द प्रूफ। ये सिंपल प्रूफ आते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। या हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करे, साइड में स्टेट करो, स्टेट करना है जो भी फॉर्मूला यूज़ करो, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू sec theta. So these are the formulae. So for the first proof we have used 2 formulas. First formula, first of all we have to take LHS, that is sin square theta upon cos theta plus cos theta. After that we have to take cross multiplication here, sin square theta will be same, cos into cos is cos square theta, upon cos theta will be same, then sin square theta plus cos square theta is 1, तो ये आइडेंटिटी बन रहा है, तो दैट विल बी 1 अपॉन cos थीटा इज सेम, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, देन फॉर द LHS इक्वल टू RHS, और 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल आता है, सेक के, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। सो इसका मतलब ये हो रहा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, अंडरस्टूड। सो दिस कंप्लीट द एग्जाम्पल, ओके। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड प्रूफ। अब तुम यहाँ सेकेंड प्रूफ देख सकते हैं, सेकेंड प्रूफ में क्वेश्चन क्या दिया है, now for the second proof you can see the question is given that here cos square theta bracket 1 plus tan square theta equal to 1, ठीक है। this is the second question that is given, cos square theta bracket 1 plus tan square theta equal to 1। अब यहाँ भी वैसा ही करना है। first of all we have to take LHS, after taking LHS we have to simplify the LHS, and after simplifying the LHS we have to need to prove it equal to RHS, that is 1 के equal proof करना है। so first we'll write left hand side bracket cos square theta into 1 plus tan square theta। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ये cos से अंदर मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा इंटू 1 फिर cos थीटा इंटू tan थीटा, ये cos से अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। so when you multiply this term inside it, so cos square theta into 1 you will get cos square theta plus cos square theta into tan theta you will get cos square theta into tan square theta, okay, then this cos square theta will be same plus this cos square theta is again same into, okay। अब हमारे पास tan का फॉर्मूला है, tan का रेशियो क्या है, tan theta is nothing but sin upon cos, तो tan square theta है, so instead of tan square we can write sin square theta upon cos square theta, then after that this cosine term will be cancelled because these two terms are in the division and multiple, this cos theta is in multiple of sin theta and this cos theta is in division of sin theta, मतलब ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के डिवीजन में हो गए, cos और cos, so this two term will be cancelled, after cancelling this two term what the term will be left, the term will be left cos square theta plus here from sin square theta। अब तुम इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो यू कैन सी दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ये पूरा टर्म फर्स्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा अगर तुम ऑब्जर्व करेंगे तो, cos square theta प्लस sin square theta आ रहा, तो cos square theta प्लस sin square theta क्या बनता है, आइडेंटिटी। तो अब हम इसको किसकी तरह लिखेंगे, सो विल राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ sin square theta प्लस cos square theta, ओके। sin square theta प्लस cos square theta किसके इक्वल आता है, 1 के, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS इक्वल टू 1। अभी RHS में भी चेक करो 1 ही है था, ठीक है। सो हियर देयरफॉर LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, this complete this solution, understood। so we'll write here which formula we have used here, we have used first ratio that is tan theta equal to sin upon cos, ये फॉर्मूला यूज़ करें,
Understood? So with this we have completed the second proof and second theorem. कैसा किया फिर से मैं बता रहा हूँ. The LHS is cos square theta into bracket 1 plus tan square theta here. So first of all we have to take left hand side is equal to cos square bracket 1 plus tan square theta. After that we have to multiply with cos inside the bracket, then cos square theta into 1 is cos square theta, plus will be same, then here it is tan theta, the cos square into tan theta is cos square into tan square theta. After that cos square theta will be same, plus will be same, this cos square theta will be same. Instead of tan we have to take sin upon cos, तो tan theta का फॉर्मूला है sin theta upon cos theta, then tan square theta would become sin square theta upon cos square theta, then this cos will cancel, what the terms are left, cos square theta plus sin square theta. इसको अरेंज करके लिखेंगे अगर तो क्या मिलेगा, sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. Hence the LHS equal to RHS. Now we'll go for the third example. Okay, now here this is the third question. You can see, prove that under root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal to sec theta minus tan theta. Okay, अब इधर हमें क्या करना है, the two terms are given, this is the first term and this is the second term, these are called LHS and these are called RHS. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रूट, अंडर रूट, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. अब करना क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी LHS का टर्म इसको लिखेंगे, LHS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन. ओके, तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड LHS अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. अब करना क्या है, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में टर्म क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा का हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक कॉन्जुगेट. व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट इज नथिंग बट वी हैव टू टेक द अपोजिट टर्म ऑफ दिस डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में टर्म क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा. ओके, तो ये 1 प्लस साइन का अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन, मतलब ऊपर का ही टर्म आएगा. तो हमेशा ऊपर का और नीचे का टर्म सेम नहीं रहता, तो हम ये टर्म से रैशनलाइजिंग करेंगे. अभी यहाँ एक वर्ड, न्यू वर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग. ये तुमको समझना है. रैशनलाइजिंग द टर्म मीन्स जब भी कोई टर्म रूट में दिया रहेगा या रेशो में दिया रहेगा, ओके, या फिर लीनियर फॉर्म में दिया रहेगा, एट दैट सिचुएशन वी हैव टू टेक रैशनलाइजेशन. तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हमें, तो पहले ये रूट का टर्म पूरा एज इट इज लिखना है. ओके, तो ये 1 माइनस साइन थीटा विल बी सेम अपॉन 1 प्लस साइन थीटा विल बी सेम. अब यहाँ जो टर्म है, ओके, 1 प्लस साइन थीटा, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा, कॉन्जुगेट मीन्स अपोजिट, तो वही टर्म से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म को डिवाइड करेंगे और रूट कॉमन आएगा. तो ये रूट जो है ये टोटल आ जाएगा, ये टर्म के साथ भी रूट आ जाएगा, तो रूट विल बी टोटल वैल्यू फॉर द टोटल वैल्यू. ठीक है, सो ये टर्म से हमने क्या करें, 1 प्लस साइन है, इसका कॉन्जुगेट लिए अपोजिट, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, वही टर्म से डिवाइड करना है. एंड दिस मेथड इज नोन टू बी अ रैशनलाइजिंग मेथड. तो हमने इधर रैशनलाइजेशन करें, तो ये टर्म को जब हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है ना, तो जब भी सिंप्लीफिकेशन कोई टर्म का नहीं होता तो उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द रैशनलाइजेशन मेथड. तो ये रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको. अब रैशनलाइजेशन हुए बात, ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो दोनों टर्म को. हाउ विल वी मल्टीप्लाई, विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर फर्स्ट, रूट विल बी सेम. ओके, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यू विल गेट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. ये दोनों टर्म भी सेम है, 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन. ठीक है, आफ्टर दैट विल टेक दिस टू टर्म, तो इधर देखेंगे हम लोग, तो इधर आएगा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस टर्म, ओके, फॉर सॉल्विंग द डिनोमिनेटर टर्म यू कैन यूज द आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी. कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो तुम लोग को पता है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो तुमको ऑलरेडी पता है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी. अगर टर्म है तो हम लोग क्या लिखते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला पता है ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ये डिनोमिनेटर के लिए. ओके, फॉर्मूला क्या है, अगर दो टर्म्स है, वन विल बी इन द एडिशन फॉर्म, अनदर विल बी इन द सब्ट्रैक्शन फॉर्म, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये टर्म हम इधर अप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, ब्रैकेट विल बी सेम, रूट विल बी सेम, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर विल बी सेम. आफ्टर दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, so 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, you will get 1 square minus sin square theta. अब 1 minus sin square theta क्या होता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी से, that is 1 minus sin square theta, we are getting cos square theta. So thus this term will convert into cos. So what we'll write here, okay, so we'll write here
ब्रैकेट ये 1 माइनस साइन थीटा विल बी सेम होल स्क्वायर अपॉन दिस विल बी इन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, पहले क्या किए देखो, फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, then this term will be multiply in the multiplication form 1 plus sine into 1 minus sine. For multiplying these two bracket we have to go through the identity. So there is a formula a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So we have used this formula for this term. So the numerator will be same 1 minus sine theta whole square. After that in the denominator I have written instead of a 1 is given, instead of b sine theta is given. So this will be 1 square minus sine square theta. 1 square is 1, that is 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये रूट का टर्म विल बी सेम, तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ये रूट स्क्वायर के टर्म से क्या होगा कैंसिल आउट होगा, ये दोनों स्क्वायर में दिया है ना, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट विल बी कैंसिल। सो व्हाट यू विल गेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर से बाहर निकाले, रूट के बाहर निकाले तो स्क्वायर टर्म विल बी लेफ्ट। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर था, ओनली विल गेट 1 माइनस साइन थीटा बिकॉज ऑफ रूट, कॉस स्क्वायर थीटा का बन गया कॉस थीटा। नाउ विल सेपरेट दिस कोसाइन टर्म, यू विल गेट 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। ओके, सेपरेट करेंगे, तो जब मैं सेपरेट करूँगा तो 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। आफ्टर सेपरेटिंग दिस टर्म व्हाट यू विल गेट हियर 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक थीटा। सो व्हाट शुड आई राइट हियर, सो विल राइट हियर 1 upon cos will be sec theta minus sin upon cos will be tan theta. The solution will be sec theta minus tan theta. आया नहीं आया, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई कैसा करें फिर से, दोनों ये दोनों भी टर्म स्क्वायर में, स्क्वायर से रूट विल बी कैंसल, देन यू विल गेट 1 minus sin theta upon cos theta. After that we have to separate this cosine term, then 1 upon cos theta is separate, minus sin upon cos will be separate. 1 upon cos will give you sec theta using the trigonometric rules and sin upon cos will give you tan, that is sec theta minus tan theta. अगर ये टर्म को देखेंगे तो तुम RHS के इक्वल है sec theta minus tan theta, that means these two terms are equal. So likewise we have proved this third identity. Okay, this method you have to remember, that is called rationalization method. क्या बोलते हैं इसको, rationalization, rationalization, rationalization. This method is said to be a rationalization method. क्या किया हमने, जो भी टर्म था रूट 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, तो जो भी डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उसका अपोजिट टर्म लेके वही टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा से, डिवाइड भी किया 1 माइनस साइन थीटा से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग दिस टर्म, ओके, वी हैव टू टेक मल्टीप्लीकेशन here 1 minus sin into 1 minus sin, you will get 1 minus sin theta whole square. Okay, after that 1 plus sin into 1 minus sin as it is, then a plus b into a minus b, what we have got a square minus b square, then 1 minus sin theta whole square, same 1 plus sin into 1 minus sin is 1 square minus sin square theta, but 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta होता है, इसकी जगह पे cos square theta सब्स्टिट्यूट करें। ये दोनों टर्म भी रूट के अंदर है, तो आफ्टर स्क्वायर रूट के जब मैं बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर विल बी कैंसिल, यू विल गेट 1 minus sin upon cos, then we have to separate this 1 upon cos is are different, sin upon cos will be different, 1 upon cos is sec, sin upon cos will be tan, ठीक है। So with this we have to finish this example. So I hope you understood this example. Try to simplify the more example related to this. Okay, there are many more proofs are there. The first exercise is very difficult. Okay, you have to be remember the formulas. Only proof questions are there. Okay, so we'll start with the new example with the new lecture. Okay, so for the today's lecture that is finished. Okay, and I hope you understood this example. Write the example, write the formulas, maintain your book. Okay, and if you have any difficulties, so you can feel free to ask. Thank you so much.